السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے الزامات مسترد کر دیے۔ اینکر پرسن سے ملاقات میں کہا بشیر میمن کو فائز عیسیٰ کے خلاف کیسز بنانے یا تحقیقات کرنے کا نہیں کہا تھا۔ بشیر میمن صرف اومنی گروپ کی جی آئی ٹی میں پیش رفت پر بریف کرتے تھے۔ خاتون اول کی تصویر کے معاملے پر مریم نواز کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کا بھی نہیں بولا۔ انہیں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنانے کا بھی نہیں کہا۔ ریفرنس فائل کرنے کا کام بشیر میمن کا تھا ہی نہیں تو ان سے کیوں کہتا۔ عمران خان نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے الزامات مسترد کر دیے۔ اینکر پرسن سے ملاقات میں کہا کہ بشیر میمن کو فائز عیسیٰ کے خلاف کیسز بنانے یا تحقیقات کرنے کا نہیں کہا۔ بشیر میمن صرف اومنی گروپ کی جی آئی ٹی میں پیش رفت پر بریف کرتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کراچی کے حلقہ NA-249 کا ضمنی مارکہ 54 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل 4777 ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل 1989 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر اور پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال 1241 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے امجد آفریدی صرف 950 ووٹ ہی لے سکے ہیں۔ کراچی کے حلقہ NA-249 کا ضمنی مارکہ کراچی کا ضمنی مارکہ رمضان کے باعث روایتی گہما گہمی انتہائی کم، ووٹرز کا رش اور جوش و خروش بھی دکھائی نہ دیا۔ نوجوان تو گھروں سے نکلے ہی نہیں، بزرگ اور خواتین نے کچھ ہمت دکھائی، روزے میں ووٹ کا فرض ادا کرنے پولنگ اسٹیشن پہنچے۔ ووٹ ڈالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، میں نے ووٹ ڈال بھی دیا۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں، سہولت کے ساتھ ڈال دیے ہیں ووٹ۔ شیر کو ووٹ دینا چاہیے کہ اس کو یہ کام کرے، علاقے میں کام کرے۔ تو میں نے ووٹ ڈال دیا، صرف شیر کو ووٹ ڈال دیا اور مہنگائی کے خلاف ڈال دیا۔ ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا ہلکا شور سنائی دیا۔ MQM امیدوار حافظ مرسلین نے پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام عائد کیا۔ وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر بھی ملا ہوا ہے اور تیر کے نشان پہ وہ ٹھپے لگا رہا ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہاں پر کچھ پیسے دے کر انہوں نے خریدا ہوا ہے، اور جہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں انہوں نے ہماری بکیں جو ہیں ان کے پاس کسی نے چھپائی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر بندوخیل نے پاک سرزمین پارٹی اور نادرہ پر ووٹ ادھر ادھر کرنے کا الزام لگایا۔ سب ووٹوں کا پولنگ اسٹیشن سے جہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے ہر جگہ سے سارے ووٹ ادھر ادھر کیے، لیکن ان کے خلاف ضرور ایکشن لیا۔ یہ کون سی کالی بیڑیا ہے جو الیکشن کمیشن کے درمیان ہے یا نادرہ کے اندر ہے جہاں انہوں نے سارے ووٹر کو ادھر ادھر تیتر بتر کیے۔ الیکشن کمیشن بھی ایکشن میں نظر آیا۔ حلقے کا دورہ کرنے والے PTI MPA فردوس شمیم نقوی اور بلال غفار کو فوری طور پر حلقہ بدر کر دیا۔ الیکشن کے دوران سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات دکھائی دیے، کسی بھی علاقے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ NA-249 میں نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حلقے کی اس وقت کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز کامران شیخ سے۔ جی کامران شیخ، ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، اب تک کتنے پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کنکلوڈ ہو چکے ہیں؟ عمران صاحب، اب تک تقریباً 54 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ کچھ پولنگ اسٹیشنز کو ہم نے خود جا کر روزے سے پہلے اور روزے کے بعد مانیٹر کیا۔ اس وقت تک جو صورتحال ہے اس میں پہلے نمبر پر جو نتائج ہمیں موصول ہو رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل ہیں جو کہ 4777 ووٹ لے کر اس وقت تک پہلے نمبر پہ ہیں۔ یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل جنہوں نے 1979 ووٹ لی ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال ہیں جنہوں نے 1241 ووٹ لیے ہیں، جبکہ PTI کے امیدوار 950 ووٹ لے کر اس وقت تک چوتھے نمبر پر ہیں۔ اوور آل جو سچویشن ہے، کیونکہ 276 پولنگ اسٹیشنز ہیں اور 276 پولنگ اسٹیشنز کے آہستہ آہستہ نتائج آتے جا رہے ہیں۔ ابھی صرف 54 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آئے ہیں، کافی بڑی تعداد ہے۔ یہ بھی بتائیے گا تقریباً 3 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ووٹرز تھے، لیکن ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کافی کم رہا۔ کیا سیاسی جماعتیں اپنے ووٹرز کو موبلائز نہیں کر سکیں یا رمضان میں یہ آج انتخاب تھا تو اس وجہ سے ٹرن آؤٹ کم رہا؟
इमरान साहब, दोनों बातें हैं। गुज़िश्ता रात को हमने बाकायदा ये वॉइस मैसेज सुने जिसमें खुर्रम शेर जमान कारकुनान से नाराजगी का इजहार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने इन कैंप्स, जो हमने कैंपेन के लिए कैंप्स लगाए थे, जो हमने पोलिंग एजेंट्स बनाए थे, वहाँ पर एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही, वहाँ पर लोग पहुँच नहीं पा रहे। उन्होंने नाराजगी का इजहार बाकायदा वॉइस मैसेजेस के जरिए कारकुनान से किया। और जब हम सुबह यहाँ पर पहुंचे तो हमने चंद एक कैंप्स थे जहाँ पर हमें गहमा गहमी नजर आई, उसके अलावा दीगर कैंप खाली थे, जबकि 8 बजे का पोलिंग का वक्त था। 8 बजे पोलिंग शुरू हो गई थी, लेकिन बाज पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर 8:20 और 8:25 तक पोलिंग इस वजह से शुरू नहीं हुई कि पोलिंग एजेंट्स नहीं पहुंच सके थे। ये सियासी जमातों की आपस की कुछ नाअहली से कहा जा सकता है। अपडेट कर रहे थे डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के बाद ख्याल किया जा रहा था कि NA 249 में भी टर्नओवर जो है जरा ज्यादा होगा, एक बहुत ज्यादा कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। बहुत शुक्रिया कामरान शेख। कराची के हल्के NA 249 का ज़िमनी इंतखाब, पाक से जमीन पार्टी ने प्रिजाइडिंग अफसर पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। PSP रहनुमाओं ने दावा किया कि पोलिंग स्टेशन नंबर 109 और 110 पर प्रिजाइडिंग अफसर ने हमारे पोलिंग एजेंट से वक्त से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत ले लिए। PSP के एहतजाज पर प्रिजाइडिंग अफसर ने तमाम फॉर्म मंसूख कर दिए और 1 बजे और 2 बजे कर, यानी 2 बजे नहीं है, इसने अभी पोलिंग क्लोज कर रहा है। कराची में PTI अपनी जीती हुई नशिस्त हार रही है। वफाकी हुकूमत अपनी कारकर्दगी का नतीजा भुगत रही है। PP रहनुमा नफीसा शाह की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। PTI सेनेटर ओन अब्बास बोले ज़िमनी इलेक्शन का जनरल इलेक्शन से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तलाल चौधरी बोले कि पीपल्स PTI को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या कर रहे हैं? और अब जिक्र कोरोना वायरस का, जिसके वार कम ना हो सके। आज फिर 150 से जायद मरीज जान से गए। 5000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। वजीर इत्तलात ने मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। खतरनाक कोरोना वायरस के वार, आज भी कई लोग बने शिकार। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 5480 नए केसेस सामने आए। 151 मरीज जान से गए। सबसे ज्यादा पंजाब में 103 अमवात हुई। मस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मस्बत केसेस की शरह 15% तक पहुंची तो मुकम्मल लॉकडाउन लगा देंगे। इस वक्त जो ओवरऑल शरह है वो तकरीबन 11.5% के ऊपर है। अगर ये शरह बढ़कर 14% या 15% पे चली गई तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इसके अलावा कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। बलूचिस्तान हुकूमत ने जुमरात और जुम्मे को सूबे में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। NCOC की रिकमेंडेशन ये थी कि हर एक सूबा जो है अपने जो मारूजी हालात है उसको मद्देनजर रखकर फैसला करे। तो उस बुनियाद पे आज और कल जो है पूरे बलूचिस्तान में जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो बंद रहेंगी। पंजाब के अस्पतालों में दबाव बढ़ गया। सिर्फ 7% वेंटिलेटर्स खाली है। मुलाजमीन की कमी और मरीजों का रश भी डॉक्टर्स की मुश्किलात बढ़ा रहा है। कोरोना से निपटने का मिशन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दरामद की मंजूरी दे दी। मुल्क में सेहत की देखभाल की सहूलियात को बढ़ाने के लिए 6000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दरामद किए जाएंगे। 20 क्रायोजेनिक टैंक्स इंपोर्ट करने की मंजूरी भी दे दी गई है। 5 मई से 20 मई तक परवाजें महदूद करने और ऑक्सीजन की बेहतर फराहमी के लिए मिस्री शाह की स्क्रैप इंडस्ट्री को बंद करने का फैसला भी कर लिया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग, हुकूमत ने इंसदाद कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का सिलसिला तेज कर दिया। PIA के मजीद 2 तैयारे वैक्सीन की 7 लाख डोज लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। रात 12 बजे तक मजीद 3 लाख डोज वतन पहुंच जाएगी। 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन 3 मई से शुरू होगी।
वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर के मौके पर शहरियों को 6 छुट्टियां देने का ऐलान। 10 से 15 मई तक तातीलात होंगी। एनसीओसी ने घर रहो महफूज रहो हिकमत अमली के तहत गाइडलाइंस भी जारी कर दी। चांद रात को मेहंदी, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स लगाने पर पाबंदी होगी। तफरीही मकामात, उनके इर्द गिर्द मौजूद होटल, पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स पर भी ताले होंगे। ईद की छुट्टियों के दौरान बैन सूबाई, इंटर और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। निजी गाड़ियों, रिक्शों और टैक्सियों को 50% सवारियों के साथ चलने की इजाजत होगी। पंजाब काबीना ने इससे पहले लाहौर समेत ज्यादा शराब वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑक्सीजन सप्लाई बरकरार रखने के लिए इक़दाम करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस और शरह अमवात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में बताया गया कि ईद से कबल लाहौर समेत कोरोना के ज्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज एनसीओसी में पेश की जाएगी। वज़ीर आला ने सूबे में ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए इकदामात और इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन सप्लाई मुअत्तल करने की तजवीज पर सिफारिशात तलब कर ली। काबीना इजलास में रमजान पैकेज, गंदम खरीदारी, जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और जिला मुजफ्फरगढ़ में चौक सरवर शहीद को नई तहसील बनाने के हवाले से फैसले भी किए गए। इससे कबल उस्मान बुज़दार ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की, जबकि स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। रहनुमाओं ने कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और इस वबा से बचाव के लिए SOP के सख्त नफाज पर बातचीत की। उधर भारत में कोरोना से अब तक का हलाकत खेज दिन। 3,646 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। रिकॉर्ड 3,79,000 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मस्बत केसेस की शरह 18.2% तक पहुंच गई। भारत में कोरोना वायरस का कहर, आज फिर रिकॉर्ड केसेस और अमवात। गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,89,000 से ज्यादा केसेस, 3,645 मरीज जान से गए। दिल्ली और महाराष्ट्र कोरोना का गढ़ बने हुए हैं। अस्पतालों में जगह खत्म, मरीज सड़कों पर लेटे हुए हैं। इन्होंने मुझे, मैं बाहर GTV के बैठी रही, नु कहते रहे ठीक है तुम्हारा मरीज। मैंने नु कहा भैया चाहे मेरे से तुम पैसे ले लो, मेरे से मेरा आदमी को मिलवा दो, पर मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की। सूरत हाल को देखते हुए 4 धाम यात्रा को मंसूख कर दिया गया। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर भारत छोड़ने की हिदायत करते हुए $10 करोड़ की तिबी इमदाद देने की यकीन दहानी करवा दी। चीनी वजीर खारजा ने भी भारतीय हम मनसब को खत लिख दिया और कहा कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साथ हैं। मुल्की मईशत को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बचा रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब, कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $1 अरब भेजे। अगर 20 लाख लोगों को इससे मुंसलिक कर दिया तो ये कहां से कहां पहुंच जाएगा। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों से नारवा सलूक। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा इक़दाम, सिफारती अमला वापस बुलाने और सजा देने का ऐलान कर दिया। हमारी एम्बेसी ने जो उनको सर्विस देनी चाहिए थी, जो उनका ध्यान रखना चाहिए था हमारे सऊदी अरेबिया में लेबर को, वो उन्होंने नहीं दिया। मुझे ये भी रिपोर्ट्स आई है कि उनसे पैसे लिए जाते थे। मैं ज्यादा स्टाफ वापस बुलवा रहा हूँ पाकिस्तान। बड़ी हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही, हम एक मिसाली सजाएं देंगे उनको। इमरान खान ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे से मुल्क चलता है। 90 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज, बहुत बड़ा एसेट हमारा बैठा हुआ है बाहर। पिछले 1 साल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। $1 अरब इन अकाउंट्स में आपकी जो स्कीम है, इसने कामयाबी से इतनी ज्यादा अचीवमेंट की, मैं आपको मुबारक देता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा एक्सपोर्ट न बढ़ने और डॉलर की कमी की वजह से IMF के पास जाना पड़ता था। बरामदात न बढ़ने तक हमें डॉलर की कमी तरसीलात ज़र से पूरी करना होगी। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।